श्री ए राजा जी। सर क्वेश्चन नंबर 41 सर। उत्तर सभा पटल पर किया गया। ऑनरेबल मेंबर। Sir, with the due respect to the Honorable Minister, I must express our deep anguish by saying this reply, that the reply which was laid before this court is not only evasive but irresponsible. Sir, no commitment has been made in the answer. Let me permitted to explain the situation prevailing in Tamil Nadu. Sir, last year December 23, Chennai, Tiruvallur, Kanjipuram districts were heavily attacked by Mijum cyclone. And the same month, third week of December, again Thoothukudi, Tirunelveli and Madurai, southern districts were heavily hit by the another cyclone. Sir, let me permitted to say something before this house. When the government was instead came to the power under the leadership of Dr. M.K. Stalin, the house aware, the nation aware that... Honorable member. Sir, I am coming. The 5 lakh crore debt was incurred by the STL government and Corona was in peak. In spite of the two difficulties we come across, we maintained our financial burden in a fair manner. Yes. In this situation, two big cyclones hit the Tamil Nadu. The amount which was sought by the government, Tamil Nadu government, 37 crores. 37 crores. Chief Minister, Honorable Chief Minister of Tamil Nadu met the Prime Minister. Then the delegation of the all-party meeting met the Honorable Home Minister. In spite of that, no assurance that has been given in this answer when the amount is going to be released or how much it is going to be released. Sir, my first question is, interministerial consultation and committee came to Tamil Nadu, gave the report. Tamil Nadu government gave the report. Both reports are before this government. In spite of that, in spite of the assurances given by the Home Minister in person, when the amount is going to be released, the release amount, I think that whether it is going to be matching the amount which was released for Gujarat, Karnataka and other state which was ruled by the BJP. महोदय, माननीय सदस्य जो कहे कि उत्तर सटीक नहीं, मैं कहना चाह रहा हूं कि जो प्रश्नों को उन्होंने रखा है उसका उत्तर इतना सटीक है, उसको समझने की ज़रूरत है। और पिछले सरकारों द्वारा जो भी कदम उठाए जा रहे थे, 2014 के बाद माननीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संवेदनशीलता के साथ केंद्र सरकार जो कदम उठा रही है, उसकी भी जानकारी रखने की ज़रूरत है। अगर पवित्र भाव से यह देखेंगे तो पता चलेगा कि मोदी सरकार ने आपदा प्रबंधन और आपदाओं के समय सहयोग में कितना बढ़ चढ़कर सहयोग किया है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, कुछ उन्होंने राशि के आवंटन की बात कही है। मैं जरा माननीय सदस्य से आग्रह है कि इसको जरा गौर से सुनेंगे। 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान राज्य आपदा रिस्पांस फंड के तहत आवंटन को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा उल्लेखनीय वृद्धि की है, जो इस प्रकार है। आप जरा देखिए, 2010 से 2015 में मात्र 33,581 करोड़ रुपए का प्रावधान था, जो 2015 से 2020 में 61,220 करोड़ रुपए और 2021 से 2026 में और अत्यधिक बढ़कर 1,38,122 करोड़ रुपए हो गया है, जो SDRF में 282% से अधिक की वृद्धि हुई है। महोदय, राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस फंड NDRF से केंद्र से राज्यों को जो अतिरिक्त सहायता 2004 से 14 के अवधि में, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने कहा है कि पहले क्या राशि दी गई थी, अभी क्या राशि दी जाती है, तो आप कितनी राशि बढ़कर योजनाबद्ध की, इसकी मैं जानकारी देना चाहता हूं।
2004 से 14 की अवधि में मात्र 65,346 करोड़ रुपए थे, जो बढ़कर 2014 से 24 के दौरान 1,98,173 रुपए कर दी गई, जो 3 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी है। यह दर्शाता है कि मोदी सरकार देश में आपदा से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की जरूरतों के प्रति कितनी संवेदनशील है। ओके। महोदय कितनी नहीं, और इसमें जब जितना बोले हैं वो तो भाषण दिए हैं, सप्लीमेंट्री तक पूछे नहीं है, मैं तो भाषण नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो रखे हैं उसको तो मैं जरूर कहना चाहूँगा। और उन्होंने, और सर मैं इसमें कहना चाहूँगा कि SDRF फंड पहले बाद में दिए जाते थे, अब SDRF फंड में तो बढ़ोतरी हुई। SDRF फंड होता यह है महोदय कि जो आपदा से निपटने के लिए और उसकी तत्परता समय पर जारी रहे, इसके लिए भारत सरकार जो निधि आवंटित करती है, जो प्रावधान देती है, उसका 75% केंद्र सरकार देती है राज्यों को SDRF फंड के तहत, और पवित्र मन से देती है, शुद्ध मन से देती है। उसका उपयोग करने की जरूरत है महोदय। अभी भी 2013 करोड़ SDRF फंड तमिलनाडु सरकार के पास उपलब्ध है और जिसका वह उपयोग कर सकते हैं। ऑनरेबल मेंबर, आपके मेंबर है Sir, the answer that has been given by the minister is not bona fide. I can tell that it is completely malified. You are keeping the stepmother attitude towards the states which are not run by the BJP. Sir, we should not confuse. Let me clear before this house for academic reasons and other reasons. Sir, state disaster relief fund is nothing to do with national disaster fund. The amount which is being asked by the Tamil Nadu government is under national disaster fund exclusively by the central government, union government. But SDRF is nothing but the contribution that has been given by the state government also there under the 15th Finance Commission. So 15th Finance Commission is universal to all states. You cannot go for the specific one. It is available to every state. Matching share is there. All states have to give the matching share, 20% or 25%. So don't confuse Mr. Minister. आपका प्रश्न क्या है? So don't confuse Mr. Minister yourself between the national disaster fund. Please ask question. Sir, my question is, sir, I can give ample example. The way in which the other states are being treated is something different. My only question is, at least hereafter, whether the government has come forward to devise a new rules under the National Disaster Fund to maintain the same attitude and homogeneous attitude, similar and identical attitude to treat all the states on par with Gujarat and Karnataka where your government is in power. महोदय, पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों को, महोदय, चक्रवात विपर्यय के दौरान गुजरात सरकार को SDRF के तहत 1 रुपए की वित्तीय सहायता नहीं की गई है। बताइए। और यह नियम की बात करते हैं कि आगे क्या करेंगे, तो सर माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना NDMP जारी की गई थी। 2019 में फिर यह पुनरीक्षित कर आपदा प्रबंधन के इस कदम में संशोधित रूप भी जारी किया गया। महोदय, आपदा प्रबंधन में उभरती वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और ज्ञान के आधार पर समय समय पर इस पर सुधार किया जाता है। सर, इतना बढ़िया गतिशील दस्तावेज है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वह चूँकि नए नियम बनाने की बात करते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी आपदा प्रबंधन के लिए और आपदाओं के समय जान माल का नुकसान शून्य हो, संपत्तियों की नुकसान भी कम से कम हो, इसके लिए 10 पॉइंट एजेंडा जारी किए और दुनिया उसकी सराहना कर रही है। अभी तक इनको समझ में ही नहीं आ रहा है। और महोदय जिस तूफान की बात कर रहे हैं महोदय, उसके विषय में बताना चाहता हूं कि जब गृह मंत्रालय
बार बार निर्देश जारी करते हैं। और जिस बाढ़ की चर्चा की है जिन राज्यों में, उसके लिए भी सर बोलने तो दिया जाए महोदय, सुने तो। और मैं चेन्नई का उदाहरण देना चाहता हूं कि 7 बड़े आबादी वाले नगरों में, महानगरों में, जब उसके बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति आती है तो उसका प्रबंधन ठीक से हो, इसके लिए 2,500 करोड़ का प्रावधान किया गया। चेन्नई को भी 500 करोड़ भारत सरकार अच्छे प्रबंधन के लिए दी गई, ताकि चेन्नई भी बारिश के बाढ़ से प्रभावित नहीं हो। महोदय, भारत सरकार जो पहल और कदम उठा रही है, भारत सरकार मजबूत वास्तविक समय प्रणाली यानी कि सटीक भविष्यवाणी हो, इसके लिए प्रणाली सिस्टम को डेवलप किया है। MHA लगातार मॉनिटरिंग करता है। कोई आपदा की स्थिति बनती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं अपनी निगरानी में हमेशा उस प्रबंधन को जारी रखते हैं, दिशा निर्देश करते हैं। माननीय गृह मंत्री जी आपदा के समय सभी राज्यों से संपर्क करते हैं और सलाह भी देते हैं, सहयोग भी देते हैं। महोदय, एक IDRN गृह मंत्रालय ने इन्वेंटरी का डेटाबेस तैयार किया है, इंडिया डिजास्टर रिस्पांस नेटवर्क प्लेटफॉर्म तैयार किया है। और महोदय, IMCT की बात कर रहे थे, तो IMCT अब तो पहले ही जाती है, राज्य का ज्ञापन आता है उसके पहले ही माननीय गृह मंत्री जी IMCT की टीम भेज देते हैं और खुद प्रधानमंत्री जी चिंता करते हैं। IMCT की टीम वहाँ भी तमिलनाडु सरकार के ज्ञापन मिलने से पहले ही पहुँच गई थी, उसका असेसमेंट की है। अभी तो 2013 करोड़ की राशि उनके पास उपलब्ध है, उसका उपयोग करें। IMCT का रिपोर्ट आया है, वह जो मंत्रालय का, जो केंद्र सरकार की जो व्यवस्था है, प्रक्रिया है, उसके तहत उस पर विचार किया जाएगा और उनको बताया जाएगा। धन्यवाद सर।